for GATE as well as engineering services. In GATE examination, they can ask a common data question from this particular part, shear force and bending moment diagram. That can be from 2 to 4 marks. In engineering services, direct questions are being asked in objective, and in conventional, every year a 15 to 20 marks question is fixed. This is your pre-technical course, and after the pre-examination I'll be starting the conventional practice program also, in which we'll practice as many questions as possible so that we can fetch great marks in the conventional examination. So this is one of the most important topic for conventional as well as objective point of view. Let's start with this topic from the very basic. In the previous classes I told you about the shear forces and the bending moment. Shear force was the internal force which was produced tangentially inside the body at each and every section, so that to maintain the equilibrium between the left and right part of that section. The bending moment is basically, if external moment is applied on a body, then the external moment will be resisted by the body by the production of internal stresses. Those internal stresses together produce internal forces, and because of those internal forces there is an internal moment which is known as moment of resistance, which is developed to reduce the effect of the external bending moment. So basically these both of these forces are the internal forces only. Now in this particular chapter we have to study the shear forces and bending moment, and we have to draw the diagram for that how these forces are varying. Why you want to draw the diagram? We want to draw the diagram because if we know that on a particular point the shear force is maximum, on a particular point, it means that जहाँ पे shear force ज़्यादा है उस particular area को shear force से resist कराना है, जहाँ bending moment ज़्यादा है उस particular area को bending moment को resist कराने के लिए उसका कुछ इस तरीके का बनाना है केस की bending moment resist हो जाए. It means that you have to draw the shear force and bending moment diagram in order to analyze the structure, for its safety. Safety के लिए you have to analyze, and for the analysis you have to draw the shear force and the bending moment diagram. So let's start with the very basic. Let's consider a body. This is our body. ये कोई structure है आपके पास. This is your structure. On this structure there is a presence of this force P. Let's say this is the force P. ठीक, ये स्ट्रक्चर एक सपोर्ट पे रखा हुआ है, ये सपोर्ट इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ पी. बहुत बेसिक में समझना बिल्कुल. अभी ये फोर्स पी, आप मान लो आप इसके ऊपर कूद रहे हो, ये कोई स्ट्रक्चर है, यू आर जंपिंग ओवर दिस. ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कैसे. इट मींस दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स पी ओवर दिस स्ट्रक्चर, देन द सपोर्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो दिस स्ट्रक्चर will be producing some external reactions, and if these reactions, let's say R, if this reaction R is greater than equal to P, then the effect of P cannot be like creating any problem for this structure, because the effect of P is totally neutralized by the presence of the reactions which are present at the bottom of the structure, that is at the support. अगर ये रिएक्शन नीचे जो सपोर्ट पे प्रोड्यूस हो रही है ये ऊपर से लगने वाले लोड के या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होने वाला. ये तो हो गया एक्सटर्नल रिएक्शन की बात. अब ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन गेट ट्रांसफर्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर. ये गया आर इसके अंदर, ठीक. अभी इस पी की इफेक्ट की वजह से ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर गेट शेयर ऑफ पॉइंट यहाँ से टूट जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है. ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर बेंड हो जाए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मुड़ जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा. इट मीन्स दैट द शेयर ऑफ एंड द बेंडिंग इफेक्ट is also reduced. The shear off and the bending effect is also reduced due to the presence of internal shear forces and internal bending moment. इसका मतलब इस P की वजह से जो shear हो सकता है या इस P की वजह से जो bending आ सकती है, उसको रजिस्ट करने के लिए बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रेसेस, जो इंटरनल फोर्सेस ट्रांसफर हुई थी एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से, वो इंटरनल फोर्सेस इस शेयर के इफेक्ट को भी खत्म कर देगा और इस बेंडिंग के इफेक्ट को भी खत्म कर देगा. मतलब बेसिकली ये जो फोर्सेस है इनके थ्रू जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा
वो होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल मोमेंट को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अगर ये ऐसे लग रहा है तो ये इसका अपोजिट डेवलप हो रहा होगा। एंड सिमिलरली ये जो शियर फोर्स आ रही होगी इस पी की वजह से, ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है एक्सटर्नल रिएक्शन के अंदर जाने की वजह से, ये फोर्स इस शियर के इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। इट मींस दैट वी हैव टू डिजाइन सच अ स्ट्रक्चर in which all the forces which can create failure get neutralized, which can create failure get neutralized. So we have to design the structure like that. It means that the first and most important point in this case, this should be that the external reaction should be greater than equal to the total load, greater than equal to the total load. The external reaction should be greater than equal to the total load. ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। कभी भी जब भी आप फोर्सेस की बात करते हो, आपने फोर्स की स्टडी की थी इन द लास्ट लेक्चर, वी हैव स्टडीड दैट फोर्सेस आर बेसिकली, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, आर थ्री टाइप्स बेसिकली। नंबर वन, एक्सियल फोर्स। नंबर टू, shear force, and number three was bending moment. Bending moment. These were the basic three forces. ट्विस्टिंग हटा दो, वो दूसरा केस है। इसका मतलब ये है कि कभी भी स्ट्रक्चर के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम ये तीन तरीके की प्रोसेस आ सकती है। या तो एक्सियल फोर्स आएगा, या शियर फोर्स को रजिस्ट करना पड़ेगा, या फिर उसे बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर को कभी भी किसी भी केस में यही तीन चीजें रजिस्ट करनी पड़ जाती है। तो उस बेचारे को कम से कम ये तीन चीजें रजिस्ट करने के लिए कैपेबल बनाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर को ये तीन फोर्सेस कैपेबल बनाने के लिए we have to provide the supports, such that those supports are sufficient to develop the external force, such that the axial force, the shear force and the bending moment which is produced due to the external loading get neutralized. मतलब इन सारी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ऐसी सपोर्ट कंडीशन बनानी पड़ेंगी कि ये सारी फोर्सेस का इफेक्ट जो लोड की वजह से आ रहा है वो सारा का सारा सपोर्ट पे डेवलप होने वाली रिएक्शन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारा सेफ हो जाए। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर हमारा सेफ कब हो रहा था? जब ये रिएक्शन आर जो नीचे से डेवलप हो रही थी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो अंडर एक्सट्रीम कंडीशन कम से कम एक चीज यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये रिएक्शन कम से कम पी के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक्सियल फोर्स की बात करते हो तो एक्सियल फोर्स का मतलब दिस फोर्स विल बी इन एक्स एक्सिस। इट मींस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस। जितना यहाँ से लग रहा है उतना ही यहाँ से लगना चाहिए, जैसे ये बराबर हो रहा है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। सिमिलरली समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस द शियर फोर्सेस गेट 0, न्यूट्रलाइज शियर फोर्स होनी चाहिए, एक्सियल फोर्स होनी चाहिए। तीसरा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। कल मैंने आपको बताया था कि मोमेंट कहाँ पे आता है, रोटेशन किस एक्सिस पे होता है, जेड एक्सिस पे होता है, जो आपके सामने आपके ऊपर आ रही है कंप्यूटर से बाहर निकल के या मोबाइल से बाहर निकल के बाहर आ रही है, फील करो, बाहर आ जाएगी। आप फील करना स्टार्ट कर जाओगे, व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द फ्लूइड मैकेनिक्स, यू विल बी एबल टू एनालाइज ऑल द थिंग्स। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू डू। फाइन, this is the neutralization of the axial force, this is the neutralization of the shear force, this is the neutralization of the bending moment which is along the z axis. If all these forces get neutralized, it means the structure will be, you can say, stable or safe. It means that the maximum number of failures in any structure can be of three types. And if the number of reactions are greater than 3, then the structure will be safe. It means that you can say that for a structure to be stable, the reaction should be greater than equal to 3. The reaction at the support should be greater than equal to 3. And if the structure is not stable, then the reaction will be less than 3. ये तो स्टेबिलिटी की बात हो गई और फोर्सेस की बात हो गई। इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टेबल का मतलब समझ में आ गया, रिएक्शन इतनी डेवलप हो जाए कि भाई स्ट्रक्चर हमारा सेफ हो जाए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। देखो, डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी की बात अगर की जाती है, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट
मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। क्या चीज बात कर लेते हैं उसकी, रिएक्शन। एक में आप डिटरमाइन कर सकते हो रिएक्शन की वैल्यू, एक में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो रिएक्शन की वैल्यू। रिएक्शन कौन सी, जो सपोर्ट पे प्रोड्यूस हो रही है। क्यों डिटरमाइन कर रहे हो, क्योंकि वही वैल्यू बताएगी आपको कि स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं है। अगर वो सादा है लोड से तो सेफ है, अगर नहीं है तो नहीं सेफ है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रिएक्शन। रिएक्शन निकालने के लिए we have three basic equilibrium equations: sigma fx0 which is axial force 0, sigma fy0 which is shear force 0, sigma mz0 which is the bending moment 0. We have three basic equilibrium equations. It means that if you have three equations, then you can solve maximum number of three unknowns. Then you can solve maximum number of three unknowns. Fine. It means that now if you can calculate the value of three unknowns, unknown क्या है, three reactions। देखो रिएक्शंस कैसे भी हो सकती है, रिएक्शन कैन बी अगेन एक्सियल फोर्स, अगेन शियर फोर्स और अगेन बेंडिंग मोमेंट। मैंने आपको बताया रजिस्ट ये करना है तो यही डेवलप करेगा बॉडी अंदर से। आपको कोई धक्का दे रहा है, दे नहीं रहा है, मान लो दे रहा है, तो आप उसको वापस धक्का दोगे तभी आप बीच में रहोगे, वरना आप अगर उसको वापस नहीं दे पाए तो आप दूर जाओगे। अगर आपको कोई उठा के घुमा रहा है तो आपको वापस अपने आपको घुमाना पड़ेगा, अगर आपको कोई दबा रहा है तो आपको वापस उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही सब यहाँ पे है, धक्का देना, दबाना, घुमाना, all these things have to be resisted by yourself. That your body which is resisting all these things is basically the resistance or response of the body which you are studying in the strength of material. Now here the determinacy means you can determine the reaction. You can determine the reaction when the number of unknowns are 3 or less than 3. Fine, because you have 3 equations only to determine. And if you cannot determine the reaction, it means that the number of reactions will be more than 3. Then in that case, if you cannot determine the reaction, the structure will be considered to be indeterminate. For example, if there are 4 number of reactions, it means that this 4 is greater than 3. It means the structure is stable. Stable तो है, क्यों, कम से कम 3 चाहिए थी stability के लिए, ये देखो। But as these reactions are 4 and which is greater than 3, it means that this 4 minus 3 is 1. It means that this extra reaction cannot be determined. It means the structure will be indeterminate. The structure will be indeterminate. But if the number of reactions are 2, let's say, number of reactions 2 which is less than 3, अभी कम से कम 3 चाहिए, 3 चाहिए, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, unstable. But as the number of reactions are 2 which is less than 3 and we have 3 basic equilibrium equation, it means you can determine these 2 reactions. It means that the structure will be determinate, but it means that the structure can be indeterminate and stable, and the structure can be unstable and determinate और stability का कोई लेना देना नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब रिएक्शन कम से कम 3 होगी, खत्म, स्टेबल हो गया। डिटर्मिनेसी मतलब जो रिएक्शन है वो निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, ये कितना है, 3 है, तो इसका मतलब कितना निकाल सकते हो, 3 इक्वेशंस यू कैन फॉर्म, 3 values you can calculate, and if the values you have to calculate are more than 3, then the structure will be indeterminate, and the degree of indeterminacy will be the number of unknowns which you cannot calculate. Fine, like here, what is the degree of indeterminacy which you cannot calculate? Fine, so this is the stability, determinacy, indeterminacy. This is the most basic part of that. There are some basic cases, there are basic you can say exemptions, or basic you can say important points which I will give you in the written notes regarding this. वो आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने ये देख लिया है कि हमारे पास fx0, fy0 और mz0 होता है। ये तो हो गया भाई रिएक्शन निकालने की बात। किसके लिए निकालना है, सपोर्ट के लिए निकालना है। सपोर्ट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको भाई लोड को रजिस्ट कराना है, तो इसलिए सपोर्ट लगाना है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। देखो मैं बेसिक से चल रहा हूँ बिल्कुल। मैं फिर से ये मान, जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ कहीं भी, मेडी जी के किसी भी सेंटर में जब भी मैं क्लास लेता हूँ, वहाँ पे बच्चों को पता होता है। तो यहाँ भी हम कंसिडरिंग द सेम थिंग। मैं ये समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता है। व्हाट इज जीरो, दिस इज जीरो। जीरो का मतलब होता है जो भी मैं बताऊंगा आप चुपचाप उसको समझ लोगे। ये आपका मोबाइल है जिससे देख के आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको समझाया जाएगा चुपचाप आप वही समझ लोगे। एक्स्ट्रा दिमाग एक आपके पास होता है, ये नहीं लगाना। ये अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फिर आप जीरो पे ही आ जाओगे। मुझे एकदम जीरो चाहिए, जीरो से मैं इनफाइनाइट लेके आपको चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप फील करते रहो। फील क्या करना है, वीडियो फील नहीं करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो फील करना है।
Fine. So first of all, we'll study with the type of supports. Supports can be classified into basically three types. First is hinge support. Hinge support. Hinge support का मतलब होता है the support will be like this. This is hinge support. ये हो गया hinge support. हिंज सपोर्ट का मतलब को सपोर्ट क्यों दिया था? बिकॉज सपोर्ट आपको रिएक्शन डेवलप कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट कर रहा था. इट मींस दैट दिस हिंज सपोर्ट इज दैट सपोर्ट व्हिच कैन रेजिस्ट और व्हिच कैन प्रोड्यूस द रिएक्शन लाइक दिस आर one which can produce the reaction like this H1 but which cannot produce the bending moment. It means that this hinge support can resist the shear force, this hinge support can resist the axial force, but it cannot resist the bending moment. So these are the responses which this hinge support can produce. Fine. This is for hinge support. Next, the next type of support is the roller support. The roller support. रोलर सपोर्ट इस तरीके से बनता है. दिस इज रोलर सपोर्ट. और ये ऐसे भी बनता है. देखो गेट पे कभी कभी क्या करते हैं, इस तरीके से रोलर सपोर्ट बनाते हैं और ये जो नीचे के रोलर है ना, इतने छोटे छोटे लगा देते हैं. तो आंखें बड़ी करके थोड़ा देख लेना नीचे रोलर लगा है या ये नहीं लगा. कंफ्यूज करने के लिए करते हैं जानबूझ के, जिससे आपको हिंज और रोलर में कंफ्यूजन हो जाए और आपको क्वेश्चन हो जाए गलत और उनको जिन्होंने पेपर बनाया वो हो जाए खुश कि हमने आज एक बच्चे का क्वेश्चन गलत कर दिया जिसको क्वेश्चन आता है. और आप जब घर जाओगे तो आप कहोगे यार मेरे को ये क्वेश्चन आता था बट मैंने कर दिया गलत. तो आप हो जाओगे दुखी. आपका दुख दूसरे का सुख. चलो वापस आ जाओ. रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट का मतलब होता है दिस इज दैट सपोर्ट व्हिच कैन प्रोड्यूस द रिस्पांस अगेंस्ट द शियर फोर्स ओनली. ये सिर्फ शियर फोर्स को रोक सकता है भाई. इसको धक्का मारोगे चला जाएगा, नहीं रोक सकता. हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं. वर्टिकल फोर्स को रोक सकता है, मोमेंट को भी नहीं रोक सकता. इट मींस ये मोमेंट को भी नहीं रोक सकता, ये कुछ भी नहीं रोक सकता. ये समझ लो. ये बस इसको नीचे दबाओगे तो नहीं दबेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता ये. दिस इज रोलर सपोर्ट. द थर्ड सपोर्ट इज फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब होता है दिस सपोर्ट इज शोन लाइक दिस. दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट. फिक्स्ड सपोर्ट. उसका नाम ही फिक्स है, हिला नहीं सकते आप इसको. इट मींस इट कैन प्रोड्यूस दिस रिएक्शन, इट कैन प्रोड्यूस दिस रिएक्शन, इट कैन प्रोड्यूस दिस बेंडिंग मोमेंट आल्सो. ना तो घूमेगा ये, ना आगे जाएगा ना नीचे जाएगा. इट कैन प्रोड्यूस द रिस्पांस अगेन ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज नोन एज द फिक्स्ड सपोर्ट. समझ में आ गया है? क्या हो रहा था? कनेक्शन बनाओ. लोड आ रहा था किसके ऊपर? स्ट्रक्चर के ऊपर. कैसे रजिस्ट कराना है? सपोर्ट देके रजिस्ट कराना है. सपोर्ट कैसे रजिस्ट कर रहा है? रिएक्शन देके रजिस्ट कर रहा है. रिएक्शन देके रजिस्ट कर रहा है. सपोर्ट किसके ऊपर लगाओगे? कहाँ लगाओगे सपोर्ट? स्ट्रक्चर के. स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है. स्ट्रक्चर का हमें जो पार्ट पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी बीम्स. इट मींस सपोर्ट लगाओगे आप किस पे? बीम पे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द टाइप ऑफ बीम्स. टाइप ऑफ बीम्स. एकदम चैंपियन बन के निकलोगे आप. एकदम चैंपियन. Beams can be classified into basic types. Number one is simply supported beam. Simply supported beams. Simply supported beam का होता है this beam will be somewhat like this. This is a beam and this beam will be having a hinge support at one side and the roller support at another side. This is the simply supported beam. Hinge support at one side, this is A, and roller support at the another side, which is B. ये होता है simply support beam. Next beam is cantilever beam. Cantilever beam. Cantilever beam is having a fixed support at one side and free support at another side. ये free होता है. This is A. This is cantilever beam. The third type of beam which is generally seen is the fixed beam. Fixed beam. Fixed beam का मतलब होता है this will be fixed from this side and this will be fixed from this side also. This is a fixed beam. Totally fixed beam. पूरी की पूरी beam ही fixed है. Fixed from one side and fixed from another side. This is a fixed beam. Next, fourth, propped cantilever. Propped
कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर का मतलब होता है दिस विल बी अ कैंटिलीवर and here you will provide a support. This is propped cantilever. एक support लगा दिए, एक reaction लगा दी. This is one reaction only, which is roller support. This is propped cantilever. समझ में आ गया? These are the basic beams which you should know. Propped cantilever. एक और ले लो. Continuous beam. Continuous beam का मतलब होता है this beam will be spanning over more than one span. For example, this is fixed support. This is roller support. This is, let's say, again a roller support. So this is having a two span. This is continuous beam. Continuous beam will be having span 1, 2 or more than 2. This is a continuous beam. आपने क्या करना था? लोड को रोकने के लिए सपोर्ट लगाना था. सपोर्ट को कहाँ लगाना था? सपोर्ट को लगाना था बीम के नीचे. बीम क्यों लगाना था? बीम लगाना था भाई लोड को रोकने के लिए. तो सबसे पहले अब पढ़ लेते हैं द टाइप्स ऑफ लोड्स. Types of loads. देखो बीम के ऊपर लोड रखना है, ठीक है. लोड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वन इज concentrated load or point load. Concentrated load or point load. This load is represented like this. This is acting on a point like P kilonewton. This is concentrated load. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, practically the concentrated load cannot exist. Practically this load cannot exist because there cannot be any load which can be acting on a single point. एक single point पे लग रहा है ऐसा कोई load exist नहीं कर सकता. Load has to be distributed along a certain area. इसका मतलब होता है practically concentrated load is not possible, but theoretically you have to use this value, which is P kilonewton. This is a concentrated load, P kilonewton. Next type of load is uniformly distributed load. Uniformly distributed load. This is UDL. नाम से समझ में आ रहा है. यूनिफॉर्मली सेम, हर जगह सेम, पढ़ाया था एफएम में. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. दिस लोड इज रिप्रेजेंटेड एज, इफ दिस इज अ बीम, this load is represented like this. This is uniformly distributed over the beam. Beam ज़्यादा लंबी हो गई है, लोड को बढ़ा देते हैं. This is UDL, and this is represented by W kilonewton per meter. This is the UDL or uniformly distributed load. Next, third type of load which you have to consider is the uniformly varying load. Uniformly varying load. Varying load. This is UVL. इसका मतलब लोड वेरी कर रहा होगा, बट द लोड विल वेरी यूनिफॉर्मली. दिस विल बी लाइक दिस. इससे बड़ा हो गया, छोटा करेंगे. ये हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. दिस इज लेट्स से यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग लोड. ये लोड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. दिस इज W किलोन्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे लोड कितना है? 0. दिस इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ये लोड किसके ऊपर लगा होगा? बीम के ऊपर लग रहा होगा. बीम के नीचे क्या लगा होगा? सपोर्ट. सपोर्ट के नीचे क्या आएंगे? रिएक्शन. कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 होनी चाहिए, या 3 से ज्यादा होनी चाहिए. किसके लिए? सेफ्टी के लिए. सेफ्टी मतलब स्टेबिलिटी के लिए. डिटर्मिनेसी का मतलब उन रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो. डिटरमाइन कर सकते हो मतलब इफ यू हैव द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन equal to or less than 3, you can determine. If you have number of reactions more than 3, then you cannot determine using these equation. In that case, you have to use extra compatibility equations, which are slope and deflection equations, to calculate the value of unknown reactions. तो हम पढ़ते हैं indeterminate analysis स्ट्रक्चर के अंदर. स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो ये बढ़िया करके समझ लेंगे. कब? जब रिएक्शन 3 से ज्यादा जा रही. 3 से कम है then it is no problem, तब काम हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक. अभी पॉइंट क्या है? लोड लग रहा है बीम के नीचे सपोर्ट की रिएक्शन की वजह से इंटरनल जा रही है कुछ फोर्सेस जो इंटरनल जा रही है वो शियर और बेंडिंग मोमेंट है.
उन फोर्सेस का वेरिएशन आपको पढ़ना है, उन फोर्सेस का ग्राफ आपको बनाना है जिसको बोलते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन है जो पढ़ लेते हैं। दिस इज साइन कन्वेंशंस। देखो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम का, इसका मैं एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं डालूंगा बिकॉज ये पूरा का पूरा चैप्टर ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ही है। यहाँ थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं आती इससे सिर्फ एक चीज आती है, वो है क्वेश्चंस। तो आपको ये जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। एक चीज और ध्यान रखना, हम जो अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एफएम और सोम, इसमें थ्योरी बहुत कम है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना, थ्योरी फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल ज्यादा लगाओ बिकॉज न्यूमेरिकल इज मोर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो थ्योरेटिकल चैप्टर आएंगे मेरे, एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल हो गया, इरिगेशन, उसमें हम थ्योरी प्रॉपर तरीके से याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिक अप्रोच एक चीज दिमाग में अच्छे से लगा लो, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द साइन कन्वेंशन। सबसे पहले साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स साइन कन्वेंशन ये कहता है whenever you will move from left to right, left to right, जैसे समझा रहा हूं वैसे ही समझना, बुक से कोई लेना देना नहीं होता, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तरीका कोई भी हो। लेफ्ट टू राइट यू आर मूविंग, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपवर्ड्स, शियर फोर्स पता है मैंने वाई डायरेक्शन में लगाई थी, आपको पता है टेंजेंशियल होती है। द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपवर्ड विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, you are moving from left to right, and the forces which are acting downwards will be considered negative. It means when you are moving from left to right, the upward forces are positive and the downward forces are negative. Fine. Next, if you are moving from right to left, if you are moving from right to left, इसका उल्टा सही होगा। उल्टे का मतलब when you are moving from right to left, the forces which are acting upward will be considered at negative value, the forces which are acting downward will be considered to have a positive value. उल्टा, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव ऊपर वाला होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नेगेटिव नीचे वाला होगा। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द शियर फोर्स। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे इफ दिस इज अ बीम, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम हैविंग अ लोड पी, कि अगर लोड पी लग रहा है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए सपोर्ट पे पी रिएक्शन डेवलप हुआ होगा, दैट्स दिस सपोर्ट इज ए, दिस इज बी, तो आर ए विल बी इक्वल टू पी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि और कोई सपोर्ट तो है नहीं, तो रिएक्शन सपोर्ट पे ही आती है। आपको मैंने बताया कम से कम कितना डेवलप हुआ, पी। ठीक, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस पॉइंट पे रिएक्शन कितना है, पी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, पी। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, हर जगह शियर फोर्स है लाइक दिस, ये वेक्टर है तो वेक्टर कहीं भी ऐसे कैसे ट्रांसफर होता है, इसका मतलब फ्रॉम ए टू बी द शियर फोर्स विल बी पी ओनली and it is acting upward, it means this will be positive P. Fine. If you are moving from again from right to left, this P is acting downwards. This P is acting downwards, downward is positive. Again the P will be positive. Right to left या left to right. ठीक है, अभी वैसे फिगर बनाते हैं वो भी देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये तो शियर फोर्स का कन्वेंशन हो गया। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, देखो बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन जैसे समझाऊंगा फिर से वही चीज वैसे ही समझना। बुक में बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से नहीं समझेंगे। आप कैसे समझोगे? when the forces are producing sagging, it means concave upwards, ऐसी कोई शेप बन रही है, then in that case your bending moment of that force will be positive. अगर कोई फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्केव शेप बन रहा है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका। अगर कोई फोर्स है जिसकी वजह से हॉगिंग हो रही है, इट मीन द शेप इज लाइक दिस, कॉन्वेक्स ऊपर वाला पोर्शन है, देन दिस विल बी द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जब कोई फोर्स कॉन्केव बनाएगी तो पॉजिटिव, जब कोई फोर्स कॉन्वेक्स बनाएगी तो नेगेटिव। ये एन लगा दो बीच में, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, सिंपल। बेंडिंग मोमेंट is of two types. Bending moment is of two types. One is the direct bending moment, which is written as the bending moment. सिर्फ bending moment बोला जाता है, bending moment. For example, the bending moment at point A or the bending moment at point B, direct. There is another bending moment which is known as summation of bending moment.
summation of bending moment. This is written as summation of bending moment about A, summation of bending moment about B. This is like this. These are two types of bending moment which can be explained. अब वन बाय वन समझते हैं सब कुछ. बेंडिंग मोमेंट, shear force, each and everything. कैसे? लेट्स ड्रॉ ए बीम. एक बीम बनाते हैं हम, बीम से ही समझ लेते हैं. ये हो गई बीम. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. इस सिंपली सपोर्टेड बीम में लगे हैं सपोर्ट. दिस इज लेट्स से इन सपोर्ट एंड दिस इज लेट्स से रोलर सपोर्ट. फाइन. इस तरीके कुछ लगा हुआ है. इस हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में बीच में यहाँ पे मान लो देयर इज अ लोड विच इज एक्टिंग लाइक दिस. दिस इज P which is at a distance of A from here, which is at a distance of B from here, at a distance of B from here. This is the distance B. This is point A, this is again point B, and this is point C. ठीक. A पे reaction आएगा RA, you know that. Here the reaction will be HA, we know that. Here the reaction will be RB, and HB will not be there because this is our roller support. Now we know one thing that first of all you have to calculate the unknown reaction. यहाँ पे indeterminacy निकालोगे अगर आप, तो indeterminacy है कितनी reactions है 1, 2 and 3. 3 कितना equilibrium equation 3, तो indeterminacy is 0. It means this is determinate. Determinate है एक, तो ये determinate है. दूसरी बात क्या है, stable भी है क्योंकि इसके पास reaction कितनी है 3, तो it is determinate and stable भी. This is determinate and stable structure. Yes, stable beam, determinate or stable. Now next step is to calculate these reactions. To calculate this reaction you have summation fx equal to 0, which means HA will be equal to 0. HA की value आ गई 0. Next is you have summation fy equal to 0. It means summation fy RA plus RB minus P, this is equal to 0. It means RA plus RB, this is equal to P. This is your equation. HA 0 है, एक ही इक्वेशन. अभी आपको कैलकुलेट करना है RA और RB, जो सिर्फ इस इक्वेशन से नहीं आ पाएगा बिकॉज देयर आर टू अननोन. मींस यू विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट इक्वेशंस टू कैलकुलेट द रिएक्शंस. इस बीम को ध्यान से देखो. नाउ देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ बेंडिंग मोमेंट. इसी बीम से समझ लेते हैं. दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट अबाउट C पे लिखता हूँ. देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट C का जब भी किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लिखते हो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे को पकड़ लो. पकड़ लिया. किसी भी पॉइंट पे लिख रहे हो बेंडिंग मोमेंट अबाउट C लिख रहे हो, तो या तो लेफ्ट से लिख लो या राइट से लिख लो. या तो लेफ्ट से लिख लो या राइट से लिख लो, कहीं भी जगह से लिख लो. इट मीन्स दैट if I want to write the bending moment at C, then I will hold this point C and I will see the movement of this point C about the force which I am considering. For example, I am writing for right. मैं राइट से लिखा. राइट में क्या फोर्स है RB. RB इसको ऊपर लेके जा रहा है, मतलब अगर C को होल्ड किया है तो ये बीम को ऐसे लेके जा रहा होगा. सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेंडिंग मोमेंट C निकाल रहा हूँ, तो दिस पार्ट विल नॉट बी कंसीडर, ओनली दिस पार्ट विल बी कंसीडर. एक साइड से लिखना होता है हमेशा. ये बीम कुछ ऐसे जा रहा है. दिस इज बेसिकली कॉनकेव. इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज पॉजिटिव. दिस इज RB into force into perpendicular distance B. This will be the bending moment as C. Similarly, the bending moment about C can also be written like this. C को होल्ड करा. अभी इसको भूल जाओ. C पे लिख रहे हो सिर्फ पॉइंट पे, तो अब राइट को भूल जाओ, लेफ्ट से लिखते हैं तो राइट को छोड़ दो. राइट नहीं एग्जिस्ट करता, भूल जाओ. C को होल्ड कर लिया. RA का इफेक्ट देख रहे हो. RA के इफेक्ट से C के इफेक्ट में क्या ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है. दिस इज पॉजिटिव. इट मींस दिस विल बी RA into A. This is bending moment about C. Either you can write like this or you can write like this. Value will be same. Value will be same. This is the bending moment about any point. It means the bending moment at any point will be the bending moment of the transfer forces either from left or from right. या तो left से लिख लो या right से लिख लो, कहीं से भी लिख लो bending moment. This is the bending moment at any point. But if you are writing summation of moment about any point, which is C, if you are writing summation of moment about C, then you have to consider the forces from both the sides. You have to consider the forces from both the sides and you have to fix the movement. You have to fix the movement for the whole beam. क्या मतलब जब किसी एक पार्ट से लिख रहे थे, किसी एक पॉइंट पे लिख रहे थे, तो या तो लेफ्ट लिया राइट लिया था.
और सिर्फ जब लेफ्ट लिया तो राइट को भूल गए थे, राइट लिया तो लेफ्ट को भूल गए थे, और बची हुई बीम का आपने शेप देख लिया था। बट आप जब समेशन लिखते हो तो भूलोगे कहीं किसी भी पार्ट को नहीं, पूरी बीम को इकट्ठा कंसीडर करोगे इसको। इसका मतलब या तो एक पार्ट पॉजिटिव होगा या एक पार्ट नेगेटिव होगा। इट मीन्स दैट अगर आपने सी पे समेशन लिखना है और आपने इस आरबी के इफेक्ट को पॉजिटिव, आरबी का इफेक्ट मतलब ये बीम कुछ ऐसे जा रही होगी, यही होगा आरबी का इफेक्ट। इसका मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग दिस इफेक्ट टू बी पॉजिटिव, दिस इफेक्ट टू बी पॉजिटिव, देन दिस इफेक्ट विल बी नेगेटिव। क्योंकि अभी पूरी बीम की बात, पहले क्या कर रहे थे, पहले इस पोर्शन को नहीं ले रहे थे, सिर्फ ये था तो ये पॉजिटिव था, या फिर ये था तो ये पॉजिटिव था, ये ऊपर जा रहा था। अभी क्या है, अभी यू आर कंसीडरिंग द टोटल बीम। इट मींस इफ यू आर कंसीडरिंग द टोटल बीम, देन इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स फॉर द टोटल बीम। आरबी के इफेक्ट से ये पार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ये पार्ट नीचे जा रहा है। इट मींस दैट इस पार्ट का नीचे जाना पॉजिटिव है, अगर इस पार्ट का ऊपर जाना पॉजिटिव है। मूवमेंट फिक्स कर दिया, समझ में आ गया। इट मींस इफ आई वांट टू राइट द समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी considering all the forces from the left as well as from the right, then I will write like this. This is RB into B, इसको पॉजिटिव माना RB के इफेक्ट को। अगर RB into B पॉजिटिव है तो RA वाला इफेक्ट दिस इज 100% श्योर विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये वाला मूवमेंट पॉजिटिव है RB का, तो इसका मतलब RA वाला इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट नेगेटिव होगा। इट मीन दिस विल बी माइनस का RA into A। अभी आपको पता है एक्चुअल में RB into B is equal to RA into A, तो this will get equal to 0. That's why the summation of moment about any point is always 0. Summation of moment about any point is always 0. Summation of motion moment means you have to consider the moment due to all the forces. And moment about any point is you have to consider the moment either from the left or from the right. It means here comes a point. Let's write the note here. The note is that the summation of moment, ये नोट साथ में बना लेना, जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है उसको लिख लिया करो। जरूरी नहीं है सारे नोट्स में आपको तो वही चीज पढ़ो, आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे समझ में आता है उसको तुरंत लिख लो, पेज लेके बैठा करो जब पढ़ने बैठते हो। द समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज ऑलवेज जीरो and it is the moment due to all the forces that is from left and from right, लेफ्ट और राइट दोनों फोर्सेस के इफेक्ट लिखा है। दिस इज ऑलवेज जीरो। But the moment about any point is calculated either from left or from right, ठीक है, and it will be non-zero. And if it is 0, then that point will be considered as the hinge point, which is basically the internal hinge। अभी देखते हैं इंटरनल हिंज क्या होता है, समझ में आ गया। बेंडिंग मोमेंट, ओके, समेशन एंड बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। जिस पॉइंट में निकालना है उस पॉइंट को पकड़ लो एकदम, और बाकी जिस फोर्स का इफेक्ट देख रहे हो उस फोर्स के इफेक्ट से उसका देख लो कि ऊपर नीचे क्या मूवमेंट हो रहा है। जैसा ही मूवमेंट हो रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर लो। Now let's see what is internal hinge actually. Internal hinge are basically the internal support. Support का मतलब होता है जैसे this is a beam, and in this beam you have this is a hinge support here, this is a roller support here, this is 1, 2, and this is 3. 3 are the reactions which are present here. So you can say that the beam is determined by 3 minus 3. This is 0. Beam is determined. But if the beam is like this is a fixed support, and here this is a roller support, let's say, यहाँ पे reaction 1, 2 and 3, यहाँ पे reaction 1, the total number of reactions are 4, ठीक है, 4 reactions हैं अभी। Number of equilibrium equations are 3. It means if you will calculate the indeterminacy, then this will be 4 minus 3, this is equal to 1, this is 1 degree indeterminate. But अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक hinge joint लगा देता हूँ। Hinge is basically a joint,
हिंज इज बेसिकली अ जॉइंट. जॉइंट का मतलब होता है ये आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन दे देता है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज जॉइंट सी. देन यू नो दैट एक तो आपके पास थ्री रिएक्शंस है, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, summation mz0. These are the three equation we already have, but you will get another equation, this bending moment about c equal to 0. This is the fourth equation. It means that now you have four equations, so you can calculate these four unknown values. It means that when you are providing an internal joint which is in the form of hinge, at hinge the bending moment is 0. We know that, abhi humne dekha upar, bending moment is 0. It means that we will get an extra equation, and because of that extra equation we can solve the unknown reactions, and in that case this 1 degree indeterminacy will get over and we'll be able to calculate the reaction. So this beam will become determinate. This beam will become determinate. Fine. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इंडिटर्मिनेसी खत्म हो गई, तो बीम हमारी डिटर्मिनेट हो गई. So this is the basis of the shear force and bending moment diagram. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस के साथ आपको समझाऊंगा. थ्योरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा. बाकी क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे. इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितना मैं अभी यहाँ पे बताया है आपको अच्छे से रिवाइज करना है. बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी इसका shear force और bending moment डायग्राम भी बनाना है. टिल देन keep on learning, keep on revising, keep on solving the questions which I am giving to you. रैंक लेके आओ, बस यही चाहिए. टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.